یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے حزبی اختلاف پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک کو ذات اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کر رہی ہے کوشش۔ رامبن سیکٹر میں خونی نالہ کے نزدیک زیر تعمیر ٹنل کے دبے ہوئے حصے میں پھنسے مزدوروں کو بچانے کا عمل جاری۔ ایک کی ہوئی موت اور 3 کو بچا لیا گیا، دیگر 9 ابھی بھی لاپتہ۔ ٹنگراڑ کرنا میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش ناکام، 1 درانداز ہلاک۔ اور قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 1,91,96,00,000 سے زیادہ لگائے گئے ٹیکے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حزب اختلاف پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ملک کو ذات اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک میں زہر گھول رہی ہیں۔ وزیر اعظم آج جے پور میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بی جے پی کے قومی پارٹی عہدیداروں کی میٹنگ کا افتتاح کرنے کے بعد پارٹی کے مندوبین سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ سیاسی جماعتیں تناؤ کے چھوٹے چھوٹے واقعات کی آڑ میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے زہر افشانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے پارٹی عہدیداروں سے کہا کہ وہ ملک کے ترقیاتی معاملات کی طرف متوجہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ترقیاتی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں گی، لیکن انہیں ان پر توجہ مرکوز کرتے ہی رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بی جے پی کو اگلے 25 برسوں کے لیے قومی اہداف کی خاطر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اہداف کے حصول کے لیے یہ پارٹی ورکروں کا بہترین وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ملک کے سامنے تمام چیلنجوں کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک امید لے کر بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا منتر سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو پارٹیاں خاندانی سیاست کو فروغ دے رہی ہیں انہوں نے ملک کے قیمتی وقت کو ضائع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ این ڈی اے سرکار 8 سال مکمل کر رہی ہے اور یہ مدت پورے عزم اور کامیابیوں سے بھرپور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مدت مدید سے لوگ سیاسی نظام پر امید اور اعتماد کھو رہے ہیں، لیکن صورتحال 2014 کے بعد تبدیل ہو گئی، جس سے ملک کی سوچ تبدیل ہوئی اور مرکز کو مزید چوکس اور جواب دہ بنایا گیا۔ رامبن سیکٹر کے نزدیک سری نگر جموں شاہراہ پر خونی نالہ کے متصل زیر تعمیر ٹنل کے ایک حصے کے دب جانے سے ٹنل میں پھنسے کم از کم 9 مزدوروں کو بچانے کے لیے بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ اب تک 3 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ 1 مزدور جاں بحق ہوا ہے۔ رامبن میں پولیس کے سینئر سپرنٹینڈنٹ کے مطابق علاقے میں تیز ہواؤں سے گرد و غبار کے باعث دھندلاپن ہونے اور پتھر کھسکنے سے بچاؤ کارروائی میں اڑچنیں پیدا ہوتی رہیں۔ ٹنل کے نزدیک تقریباً 60% ملبہ ہٹا لیا گیا۔ پولیس اور فوج کی ٹیمیں بچاؤ کارروائی میں سرگرم رہیں۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، کیو آر ٹی کی ٹیمیں بھی سرگرم عمل ہیں۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بچاؤ کارروائی اور مجموعی صورتحال کا ویڈیو کال کے ذریعے رامبن کے ضلع ترقیاتی کمشنر مسرت اسلام سے جانکاری حاصل کی۔ اسی دوران جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار اور جموں زون کے ایڈیشنل ڈی جی پولیس نے جائے واردات کا دورہ کیا، جہاں آخری خبریں ملنے تک بچاؤ کارروائی بڑے پیمانے پر جاری تھی۔ ایس ایس پی رامبن موہتا شرما نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات دیتے ہوئے شعبہ خبر کو بتایا۔ یہاں پہ بہت تیز آندھی چل رہی ہے، اوپر سے پتھر آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ریسکیو آپریشن آن اینڈ آف ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، بٹ سارے جو آپریشن ہے وہ سارے پھر بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایس ڈی آر ایف ہے، این ڈی آر ایف ہے، آئی ٹی بی پی ہے، آرمی کے لوگ ہیں، پولیس ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، بیسیکلی سارا ہی گورنمنٹ مشینری جو ہے وہ اس چیز کے لیے ڈپلائی کی گئی ہے۔ ایک ڈیڈ باڈی نکلی ہے، گھائل 3 لوگ ابھی رات کو ہی نکال لیے گئے تھے، وہ ابھی سیول ہے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ شکایتوں کے ازالے سے متعلق ہمارا میکینزم آج مزید لچکدار اور جواب دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی شکایات کو صاف و شفاف اور منصفانہ انداز میں نپٹایا جا رہا ہے، جبکہ عملے کی باقاعدگی کے ساتھ تربیت متعلقہ محکموں کی طرف سے کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ملازمین کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کو پوری وفاداری، ایمانداری اور عہد پیما کے ساتھ خدمت کریں اور ایک مؤثر اور قابل میکینزم وضع کریں۔
कुपवाड़ा जिले के टंगरार करना इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने एक दरअंदाज को हलाक किया है। सरकारी जराये ने आकाशवाणी को बताया कि कुछ मिलिटेंट दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे और फौजियों ने आज अलल सुबह इनको ललकारा। कार्रवाई के दौरान एक दरअंदाज मारा गया, जबकि जाए वारदात पर मजीद कुमक पहुंच गई है और तलाशी की कार्रवाई जारी है। खबरों का बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। किसानों की फलाह के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने आज केवी के बांडीपुरा में कायम शहद की जांच और शहद से मुतालिक दीगर मसनूआत की टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का वर्चुअल मोड में इफ्तिताह किया। इस लेबॉर्ट्री को नेशनल बी बोर्ड ने रकूमत फराहम की हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर ने एक तरक्की पसंद शहद की मक्खियां पालने वाले इम्तियाज अहमद कुरैशी से बात की, जो केवी के बांडीपुरा में मौजूद था। उन्होंने वजीर को शहद की मक्खियां पालने में कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा करने बल्कि दूसरे बेरोजगार नौजवानों के लिए एक नए कारोबार को सामने लाने का इम्कान पैदा किया। इस प्रोग्राम में 100 से ज्यादा किसानों ने शिरकत की। ये प्रोग्राम वर्ल्ड बी डे के सिलसिले में मुनज़्ज़म किया गया था। इसी दौरान वर्ल्ड बी डे के सिलसिले में आज ज़राअत महकमे की तरफ से जम्मू और कश्मीर में और सूबाई सतह पर एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में तकारीब हुई। इस मौके पर बताया गया कि जम्मू और कश्मीर में शहद की मक्खियां पालने के लिए जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी AP एंड FWD अटल डल्लू ने अपने पैगाम में कहा कि इसकी बदौलत किसान बिरादरी को इजाफी आमदन का एक जरिया पैदा होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ज़रूरी तकनीकी स्टार्टअप्स मुल्क की मुस्तकबिल की मईशत के लिए ज़बरदस्त अहमियत के हामिल हैं। आज मैसूरू की रॉयल सिटी में एग्रीटेक एंड फूड टेक के मौजू पर एक कनक्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कुछ बरसों में भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स की इतनी लहर आई है। उन्होंने कहा कि अब नौजवान एंटरप्रेन्योर IT सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़कर अपने स्टार्टअप्स कायम करने के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान एंटरप्रेन्योर इस हकीकत को समझना शुरू हो गए हैं कि ज़राअत में सरमाया लगाना महफूज और मुनाफा बख्श कारोबार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ज़रूरी सेक्टर में जदीद और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वकालत करते हुए कहा कि इसराइल, चीन और अमेरिका ने अपने अपने मुल्कों में नई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर कई ज़रूरी अमलियात को तब्दील किया है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 191 करोड़ 96 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल ही 15,12,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,259 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,614 मरीज सेहतियाब भी हुए। सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 4,25,92,455 हो गई है। मुल्क में सरदस्त सेहतियाबी की शरह 98.75% है। जम्मू और कश्मीर में आज कोविड-19 के 6 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 4 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 2 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 13 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 47 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 14,000 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,29,68,187 हो गई है। अनंतनाग में आज जिला तरक्याती कमिश्नर की सदारत में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए खच्चरों की शरहें तय करने और यात्रा के दौरान कयाम करने की सहूलियात का जायजा लिया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के मुतल्लिका अफसरों और मुतल्लिका अंजुमनों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुतल्लिकीन ने हुक्काम को यकीन दिलाया कि यात्रियों को मुकर्रर शुदा शरहों पर खिदमात फराहम की जाएंगी। मीटिंग में सफाई सुथराई और नासाजगार मौसम के दौरान हंगामी हालात की तैयारियों पर भी तबादले ख्याल किया गया। इधर गांदरबल में डिप्टी कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग के दौरान बालतल के रास्ते श्री अमरनाथ जी यात्रा को खुश असलूबी और पूरी हिफाजत के साथ अंजाम देने के लिए इकदामात पर तबादले ख्याल किया गया।
पुलवामा के जिला मजिस्ट्रेट बसीरुल हक चौधरी ने कहा है कि इंतजामिया ने गुज़श्ता बरस लगभग 2000 तरक्याती काम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ कामों की जिम्मेदारी ली थी और इनके सरगर्म ताउन की वजह से इंतजामिया इन प्रोजेक्टों में जन भागीदारी को यकीनी बना सकती है। आकाशवाणी पर एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 2021 में MG नरेगा के तहत रोजगार के 13 लाख अयाम कार पैदा किए गए, जबकि 9,50,000 का निशाना मुकर्रर था। इसके अलावा गुज़श्ता बरस अप्रैल में एक माह के अंदर अंदर 200 बिस्तरों वाला एक कोविड अस्पताल भी तामीर किया गया। चौधरी ने कहा कि इंतजामिया ने पंचायत सेक्रेटरीट्स कायम किए हैं, जहां गांवों की सतह के कारकुनान, पटवारी और दीगर मकामी ओहदेदार एक ही मकाम पर मौजूद होते हैं ताकि अवाम की अहमियत के हामिल अमूर को हल किया जा सके। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में कायम किए गए क्लबों से वाबस्ता नौजवान भी सरकारी कामों में बहुत सरगर्मी से शिरकत कर रहे हैं। वो आम लोगों, गांवों की सतह के कारकुनान और इंतजामिया के दरमियान एक पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। ज्येष्ठा देवी प्रबंधक कमेटी के एहतमाम से आज ज्येष्ठा माता के जन्मदिवस के सिलसिले में ज्येष्ठा देवी मंदिर जेठियार श्रीनगर के इहाते में एक महायज्ञ रचाया गया। इस सिलसिले में कल शाम कलश पूजा की गई, जबकि पूर्ण आहुति आज हुई और प्रसाद भी बांटा गया। इस मौके पर ज्येष्ठा देवी माता की मूर्ति को तजदीद शुदा मंदिर में असली मकाम पर मुंतकिल किया गया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों के समेत श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में अमन आश्ती और भाईचारे के लिए प्रार्थना की। वादी की कुछ मजहबी और सियासी जमातों ने मीरवाइज कश्मीर मरहूम मौलाना मोहम्मद फारूक को उनके 32वीं यौम विसाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मरहूम मौलाना मोहम्मद फारूक अहम मिली समाजी और सियासी शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने तबलीग दीन के साथ इस्लामी तालीम को फरोग देने में भी कलीदी रोल अदा किया। जमीयत हमदानी के सरबराह मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी मरहूम मीरवाइज कश्मीर को जबरदस्त खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि मरहूम फारूक साहब मिली इत्तेहाद के लिए जिंदगी भर कोशिशें करते रहे। पुलिस ने उड़ी में एक नाके पर एक गाड़ी की तलाशी लेते हुए इसमें से हेरोइन जैसी नशीली दवा के 10 पैकेट बरामद कर लिए, जिसकी ब्लैक मार्केट में 18 से 20 करोड़ रुपए की कीमत बताई जाती है। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है। मामले की तहकीकात जारी है। नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने खून की जांच और एक्सरे जैसे सभी तशखीसी तरीकेकार पर आयद 300 रुपए तक के चार्जेस को खत्म कर दिया है। एक सरकारी बयान में एम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर DK शर्मा ने कहा कि एम्स के सदर को इजाजत देते हुए खुशी हो रही है कि एम्स अस्पताल और इससे मुतालिक सभी मरकजों में 300 रुपए तक के सभी तशखीसी या लेबोरेटरी चार्जेस खत्म कर दिए जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की पहली खातून वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने आज अपने ओहदे का चार्ज संभाला। उन्होंने ये चार्ज साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद से लिया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी पुलिस की एक जमीयत ने नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में उन्हें रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी सलाहकार काउंसिल की रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि सरकार आमदनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क को दूर करने की खातिर यकसां बुनियादी आमदनी से मुतालिक स्कीम शुरू करे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी इलाकों के बेरोजगार अफराद के लिए रोजगार की जमानत का प्रोग्राम शुरू किया जाए। इक़्तिसादी सलाहकार कमेटी के चेयरमैन बेबेक डोबराय ने गुड़गांव में कायम मुसाबिकत के इदारे की तैयार करदा रिपोर्ट जारी की है, जिसका उन्वान है भारत में नाबराबरी की सूरत हाल। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23.4, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।